Okay, so good morning, all. And first of all, I would like to congratulate all for being the part of the family of faculty of Law Delhi University. So welcome to all, and I hope that you will not face any issues in the forthcoming years because you will get the help of seniors like us and all the other seniors whom you might be knowing about. So basically, why I have organized this webinar is to tell you that I have been teaching to the faculty students and from first semester itself. So now they are in the second semester and they are still learning from me. So basically, my motive is that the lacuna that has been created in the classes between the interaction between the teachers and the students that has gone down due to the online mode of education. So just to fill that lacuna, I have tried an initiative to teach law to every student who comes up to me. And for that, I have been organizing classes and webinars so that you don't face any issue. Because you know what, that जब भी हम घर में बैठे हैं तो we are very relaxed. तो क्या होता है कि we sometimes do not get into the mood of studying, but still there is a class and we need to attend it. We have no one around us, ना हमारे colleagues हैं, ना हमारे classmates है, कोई नहीं है. We are sitting all alone, facing the wall and just listening what someone is saying. तो उससे एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है. तो उसी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश जो है आई हैव बीन ट्राइंग एंड आई थिंक दैट आई हैव अचीव्ड इट क्वाइट वेल. You might have seen the recorded lectures which I have uploaded on my YouTube channel. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए जैसे कि मैं क्लास लेता हूँ. And I was privileged that I was able to attend the offline mode of class just but for one semester. सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए मैंने अटेंड किया था. बट उसके बाद में ऑनलाइन चला गया सब कुछ. तो फिर जैसा आप लोग फेस कर रहे हैं इशू वैसे मैं भी फेस करता था. बट द पॉइंट इज दैट आई हैव स्टडीड ऑन माई ओन. जो भी मैंने पढ़ा है जो मैं पढ़ाता हूँ आई हैव स्टडीड ऑन माई ओन रेफरिंग द डिफरेंट रेफरेंस बुक्स एंड योर बेयर एक्ट एज वेल. तो उसको पढ़कर जो भी मैंने सीखा है आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव इट बैक to all of you whoever will join the classes. But it is not that if you don't join the classes then I will not guide you. Guidance is a different thing and teaching the entire subject is a different thing. Guidance in the sense that आपके किसी issue में कोई doubt है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, then I'll help you with that. It's not that कि जो classes ले रहे हैं I'll help only those students. But the point is that if you do not have the overall, if you don't know the overall approach about the subject, because I guess that all of you belong to different fields. कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अलग अलग सब्जेक्ट से आप सभी लोग आए हैं. बट सभी को एक ही काम करना है कि लॉ पढ़ना है. तो उसके लिए यू नीड टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी. योर एजुकेशन, योर बैकग्राउंड मैटर्स अ लॉट व्हेन यू स्टडी लॉ. The reason being that when you study a law, it has got a particular approach which you need to develop. Because this is not a subject wherein you have to study only the present. आपके पास्ट में भी जितने सारे इवेंट्स हुए हैं जो आपको वो सारी चीजें पढ़नी है. तो इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस बैकग्राउंड यू हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग. तो दैट डजंट मैटर हियर कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है. अब से आपको ये दिमाग में रखना है, ये माइंडसेट लेकर चलना है आगे, दैट वट एवर यू आर स्टडिंग यू हैव टू नो द पास्ट, यू हैव टू नो द प्रेजेंट, and then you have to think about that what can be the possibility or the probability in the future about this particular law. That's how the law progresses and evolves. तो देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा होगा और फिर क्लासेस भी अटेंड कर रहे होंगे. तो क्लासेस अटेंड करने के दौरान आई नो दैट यू आर डेफिनेटली फेसिंग एन इशू एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर हियर. तो इश्यूज, जो भी इश्यूज आपके लिए है मेरे लिए सेम इश्यूज है. देयर इज नो डिफरेंस. द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज दैट आई एम 2 years ahead than you, and in these 2 years I have developed my knowledge by struggling with the subject, beating about my mind over the subject, and that is the reason why I have made myself capable to teach. So पढ़ाने के लिए first you need to develop the knowledge, and then after that you need to understand that if you are not able to understand this thing, then how will the others understand? So you need to develop the capability to explain things. That is the most important thing for teaching, and I think that I have developed it quite well. So that is the reason why I have been teaching. नेक्स्ट इज दैट व्हेन वी विल बी डूइंग द क्लासेस, जब हम क्लासेस कर रहे होंगे उस समय माय वे ऑफ टीचिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट. आई डोंट टेक लॉ एज अ सब्जेक्ट, आई टेक लॉ एज अ वे टू लाइफ.
It's not a subject for me. It's my way to life. So suppose, for example, I go outside. I saw someone that someone is beating someone. Now, immediately when I saw that, I became what? I became the witness, and maybe the primary witness, because I was present at that moment there. तो इसी चीज को लॉ में कहीं पर लिखा गया है, दिस पर्सन कैन बिकम द विटनेस। तो लॉ पढ़ना अलग चीज है, बट द एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वट एवर आई हैव लर्न इज बाय द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, जो कि आपसे मैं शेयर करूंगा ड्यूरिंग द क्लासेस, and also I will try to develop these capabilities and capacities into you, so that when you reach third year, then you will be in a position to see yourself at a place in future. So this is my motive, और जो भी लॉ पढ़ते हैं वो लॉ को पढ़ने का, as I have learned from my teachers, I will teach in the same manner. It is very sad that in the online mode, few faculties uh, they have not been able to express themselves in a better way. But if you would study from the same faculties in the offline mode, they are stupendous. मतलब वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, but online mode में it is difficult for them, because you know that we as our generations have developed these technical skills, but they do not have that much technical skills, so they are too struggling. उनके लिए भी वो एक स्ट्रगल ही है। अचानक से ऑफलाइन से ऑनलाइन में उनको उठाकर बैठा दिया, उनके सामने दीवार है, लैपटॉप है, एंड दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स। तो टीचिंग इज अ स्किल। टीचिंग करने के लिए यू नीड अ स्किल, और वो स्किल जो है वो टाइम के साथ डेवलप होता है। तो दिस इज द रीजन वाई यू आर फाइंडिंग और यू आर स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग द क्लासेस। यही रीजन है, और दूसरा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज टीचर्स आर वेल केपेबल टू टीच यू इन अ गुड मैनर, बट द पॉइंट इज दैट ऑनलाइन मोड में दे दे आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट दैट कि कैसे करें। अब मैं आपसे कुछ कहता हूं, आप उधर से रिप्लाई नहीं करते, सो आई एम लाइक दैट आप सुन ही नहीं रहे। इट्स दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट आई हैव टुवर्ड्स दैट थिंग। तो यही रीजन है कि ऐसा जो है ऑनलाइन मोड में प्रॉब्लम आ रही है। बट मैंने कोशिश की है कि ऑनलाइन मोड में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कम किया जाए। खत्म नहीं कर सकता हूं मैं, कम किया जाए, ताकि जो प्रॉब्लम्स आपको क्लासरूम में आ रही है वो प्रॉब्लम मेरे साथ ना आए। दूसरा चीज ये है इसमें कि आई एम नॉट योर फैकल्टी, दैट आप मेरे से शाय रहेंगे या फिर मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, देन यू विल बी वेरी रिलक्टेंट टू डू दैट। आई एम योर सीनियर, तो इस वजह से भी यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू इंटरेक्ट विथ मी। जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, और क्योंकि मैं आप ही की उम्र का हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर थिंकिंग। so that becomes very beneficial at this stage कि आप जो है मेरी बात को उतने अच्छे से समझ पाएंगे what I am trying to say. So this is also one of the reasons why you will be able to learn law in a better manner. ठीक है, पढ़ना पढ़ाना अलग चीज होता है, but the most important thing is that you develop in yourself the capabilities to learn law on your own. क्योंकि 3 साल में लॉ नहीं पढ़ा जा सकता है। लॉ जो है वो जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उस समय से जो लॉ अप्लाई किया गया है इंडिया में, उनमें से बहुत सारे आज भी एग्जिस्ट करते हैं। So it is very difficult to study law in a time frame. There is no time frame कि इस टाइम में आपको लॉ पढ़ना है, इस टाइम के लिए आपको लॉ पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रीवियसली जो लॉज जो एग्जिस्ट करते थे वो भी अप्लाई हो सकते हैं। So that is why if I teach you law as it is given in your syllabus, then it will become very difficult for you in the future. So my motive is that जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, that will develop your skills to understand and inculcate in you the spirit of law कि आप खुद से उस चीज को आगे जाकर और डेवलप कर सके। So that will be my motive. Okay. And apart from this, there is one more thing that I would like to say, that since I am working for you, since we are working together, so this will not be a free of cost course, but I have kept a very nominal fees of 800 rupees, as you might have read in the message. So 800 rupees में entire subject, one subject 800 rupees. So whichever subject you are struggling in, जो भी सब्जेक्ट में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू विल बी स्ट्रगलिंग इन जूरिस्प्रूडेंस, बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट, एंड मोस्ट ऑफ यू, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर फिलोसफी किसी ने भी पढ़ा होगा पहले, बट आपको फिलोसफी पढ़नी है लॉ की, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। वहां पर कोई केस लॉ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, बस थ्योरी 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 है, और वो भी ऐसी थ्योरी है दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इफ यू बिलोंग टू द साइंस बैकग्राउंड, देन इट इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। आर्ट्स वालों के लिए तो फिर भी चलिए, वो थोड़ा बहुत फिलोसफी पढ़ते हैं अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, आप ग्रेजुएशन में उन्होंने पढ़ रखा होगा,
बट द पॉइंट इज दैट कि फिलोसफी को पढ़ने के लिए यू डोंट नीड एनी बुक्स. इफ यू सी द फोर फादर्स ऑफ फिलोसफी, जिन्होंने फिलोसफी का जन्म दिया था, वो कोई बुक नहीं पढ़ते थे और ना ही वो कोई बुक लिखते थे. वो बस अपने आइडियाज को सर्कुलेट करते थे. और वो आइडियाज कहाँ से आता था? वो आइडिया आता था ऑब्जर्वेशन से. So if you want to study philosophy about anything, you have to develop the ability to observe. Observe जब तक आप नहीं करिएगा, until and unless you will observe, you will not be able to study philosophy. So how to observe things? कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, कैसे चीजों को परखेंगे, ये एबिलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है. एंड दैट इज वाई इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, बिकॉज इट टेक्स टाइम. ये अचानक से नहीं होता है. डेवलपिंग एबिलिटी सच एज ऑब्जर्वेशन, इट टेक्स टाइम. तो उस ऑब्जर्वेशन को डेवलप करने के लिए यू नीड टू रीड सम टेक्स्ट, यू नीड टू गेट सम आइडिया एज फूड फॉर थॉट. तो वो जो थॉट, जो आइडिया आपको मिलेगा, उस आइडिया पर यू स्टार्ट थिंकिंग एंड यू विल बिल्ड बिल्डिंग. जो कि आप बिल्डिंग बनाना चाहे, जो फिलोसफी का एक स्ट्रक्चर आपको बनाकर देगा, एक कंप्लीट आइडिया का इलेबोरेशन जिसको आप कहते हैं, वो आपको मिलेगा फिर. तो इस तरीके से फिलोसफी को पढ़ा जाता है. Regarding the other subjects such as family law, your IPC, your torts and your contract, तो ये सारे तो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं. तो इनमें तो आपको सेक्शंस हैं, सेक्शंस का एक्सप्लेनेशन है, और उस सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन किया गया है केस लॉज में. सो वट एवर हैज बिन रिटन बाय द लॉ, दैट हैज बिन इंटरप्रेटेड बाय द जुडिशियरी, उसका इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना है. तो केस लॉज आपको केस मटेरियल के फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है. जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स का आपको केस मटेरियल में विद कंप्लीट डिस्कशन, जो भी जजेस ने कहा है पर्टिकुलर केसेस में, वो पूरा आपको इलेबोरेट डिस्कशन जो है वो मिल जाएगा. बट अगेन यू विल हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम. आप सारे केसेस नहीं पढ़ पाइएगा एक सेमेस्टर के अंदर. इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. इफ यू आर एबल टू डू दैट, इट मीन्स यू ऑलरेडी नो हाउ टू स्टडी लॉ. बट आई डोंट थिंक सो दैट यू, मोस्ट ऑफ यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट. इसी वजह से यू विल फेस इश्यूज. तो उसी पर जो है टीचर जो है वहां पर काम आता है, दैट वट एवर यू आर रीडिंग, वट एवर यू आर स्टडिंग, थोड़ा और फास्ट कर देता है. ठीक है. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, another thing which I would like to tell you, that while you are reading any subject on law, always keep a bare act with you. जब भी आप बेयर एक्ट साथ में रखते हैं, so actually whatever interpretation has been given by the judiciary, that is not पत्थर की लकीर. It can be changed. The only thing that matters is that your observation and your communication skills and your arguments, कि आप कितना better arguments दे सकते हैं. There are judgments which has been criticized. आज की डेट में भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो गलत लगता है गलत दिए गए हैं, therefore they go into appeal. तो ऐसा कुछ नहीं है कि जज ने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, हम उसे मानकर जो है अपना आगे काम करेंगे. नहीं, आप उसको रिटेलिएट भी कर सकते हैं, आप उसको रिबट भी कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज दैट योर आर्ग्यूमेंट शुड बी सो स्ट्रांग that you must be able to convince the other party or the judge कि whatever you are saying is a better thing that should have been done in this case. तो उसके लिए फिर क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए पेशेंस एंड टाइम. यू नीड टाइम टू डेवलप दैट. वो एक दिन में नहीं आता है. सो इफ यू आर थिंकिंग दैट इट इज अ सब्जेक्ट जहां पर आप एक रात में पढ़कर पास कर लेंगे, इट इज इम्पॉसिबल. खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां पर यू हार्डली आर एबल टू स्कोर अबाउट 60 मार्क्स इन अ सब्जेक्ट. सो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं दैट यू विल फेस ड्यूरिंग द करिकुलम ऑफ योर एंटायर 3 years. बट इट इज नॉट दैट कि दीज आर प्रॉब्लम्स. यू नीड टू लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स. इससे आपको सीखने की जरूरत है दैट एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट फॉर इट. एंड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू आर एबल टू गेट अ ग्रैब ओवर द सब्जेक्ट. अनलेस एंड अनटिल यू विल गेट द ग्रैब, मार्क्स लाकर आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा. बिकॉज व्हेन यू विल गो इनटू द फील्ड, जब आप फील्ड में जाएंगे तो फिर वहां पर
जजमेंट्स के अंदर में आपका जो सिचुएशन है वो ऐसा रहता है कि उसमें सिर्फ लॉ को वो लोग नहीं देखते, दे ऑल्सो सी द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द सोसाइटल बैकग्राउंड। तो सोसाइटी को भी वो ध्यान में रखकर जो है वो काम करते हैं, एंड द कस्टम्स ऑफ कोर्स। तो बहुत सारी चीजें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद में एक जजमेंट पास होता है। इट इज नॉट ओनली द लॉ जिसको कि देखकर जो है जजमेंट पास होता है। ठीक है। So I hope that whatever I'm telling you, you're getting everything. And now that's all what I would like to say right now. And if you have any queries, then you can ask. सर टाइमिंग्स क्या होगी? Timings we will discuss later on, because the students are from the 3 different centers, और तीनों ही सेंटर के टाइमिंग जो है वो अलग अलग है। So उसके अकॉर्डिंग आई विल ट्राई टू अकोमोडेट द बेस्ट पॉसिबल टाइम। एंड इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि आपके कोई क्लास है या इफ यू हैव टू गो आउटसाइड फॉर एनी रीजन, देन आई रिकॉर्ड ऑल माय लेक्चर्स। अभी तक के जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं सारे के सारे आई हैव इन द रिकॉर्डेड फॉर्म। सो आई गिव यू द एक्सेस फॉर दोज लेक्चर्स। तो जो भी आपका छूटा है वो आप वहां से देख सकते हैं। बट टाइमिंग की जहां तक बात है, so since I have been taking your third semester classes also, and I have been taking your entrance for 2022 for DULLB also, and besides that I will start a new batch for you guys. So फिर टाइमिंग जो है I will have to adjust accordingly, but most probably it will the best suitable time जो कि तीनों सेंटर्स के लिए suitable। ओके। जैसे अभी मैं जो है थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो इवनिंग में लेता हूँ 7 o'clock से 7 o'clock to 8:30। तो उस टाइम पर वो आते हैं। यस, Gupta is asking. See, the point is that you don't have to start with one thing. You have to read everything together. क्योंकि एक चीज आप पढ़िएगा फिर दूसरी चीज पढ़िएगा तो इससे क्या होगा कि दैट यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट दोज टू थिंग्स। तो यू हैव टू रीड बोथ थिंग्स टुगेदर। केस मटेरियल है चाहे जो आपका बुक्स है या फिर आपका बेयर एक्ट है, आई वुड रादर सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स, रीड द केस मटेरियल, because whatever is written in the books has been taken from the judgment। आप बुक्स उठाकर देखिएगा ना, बुक्स के स्टार्टिंग में देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ जजमेंट्स, एंड व्हेन यू गो थ्रू द बुक यू विल फाइंड दैट आफ्टर एवरी 2 or 3 sentences वन सेंटेंस विल हैव दिस सबस्क्रिप्ट की वहां पर आपका नंबर दिया हुआ है, एंड नीचे रेफरेंस दैट इन विच केस इट वाज सेड। So basically books are what? Books are just an explanation for the judgment। So if you have the original judgment in the form of case material in front of you, then why there is a need to read the books? So initially आप books को prefer नहीं करिए, you go through the case mat and your Bayer Act। तो Bayer Act जब आप पढ़ेंगे case material के साथ मिलाकर, then you will be able to understand कि what is written in the law and what interpretation has been given by the judiciary। And मैं आपको एक और चीज बताऊं that whenever you read the case material, it becomes very difficult to understand it, because आपने अगर देखा होगा द लैंग्वेज इज रियली वेरी टफ। लीगल लैंग्वेज है एक, तो दूसरा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो जब आप लैंग्वेज में डिफिकल्टी अगर आपको होगी तो डिफिकल्टी आएगी, प्लस आपका लीगल लैंग्वेज है तो बहुत सारे वर्ड्स हैं विच यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सो आफ्टर एवरी 1 or 2 वर्ड्स यू हैव टू ओपन अप डिक्शनरी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। सो उसके लिए ही मैं कह रहा हूँ कि रीड द केस मटेरियल, क्योंकि यू हैव टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल जजमेंट। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तब आपको कोई बुक नहीं मिलेगा फिर पढ़ने के लिए, देन यू विल हैव दी जजमेंट इटसेल्फ। क्योंकि जजमेंट जब कोई आता है तो उसके बाद में उसके ऊपर बुक लिखी जाती है। तो ओरिजिनल जजमेंट्स को पढ़ने की कैपेबिलिटी आप आज से डेवलप करिए, तब जाकर ये जो 3 साल है इसमें आपकी कैपेबिलिटी थोड़ी डेवलप कर पाएगी। अदरवाइज जो है 3 साल के बाद भी आप अपने आप को वही खड़ा पाएंगे जहां पे 3 साल पहले थे, बिकॉज यू हैवंट लर्न हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट और हाउ टू रीड अ केस मटेरियल। Case material basically is the collection of the judgments that has been pronounced in the courts। तो इसी वजह से केस मटेरियल और बेयर एक्ट ये दो चीज पर एक साथ आप पढ़िए,
और बुक्स को तभी यूज करिए जब यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर और द लैंग्वेज ऑफ द केस मटेरियल। ओनली देन यू मस्ट रेफर टू द बुक्स। ठीक है? यस, सर एनीथिंग यूट्यूब पे वीडियो आपकी किस नाम से है, यूट्यूब पे चैनल? लीगल पावर ऑफ जीरो। लेट मी राइट इट इन द चैट बॉक्स। सर क्लासेस डेली होगी? हाँ जी, डेली होगी। क्लासेस डेली भी होगी, और अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की जरूरत पड़ी, से फॉर एग्जांपल दैट यू हैव 5 सब्जेक्ट्स, so 5 subjects I will try to complete before your examination, because I know that different people have difficulty in different subjects. Yes, that's what I said, Laksh, that the jurisprudence subject is a completely new subject for everybody. Not only you, it is difficult for everybody. It was difficult for me as well. But then I have, मेरा जो background है, I have been studying art subject from quite a long time. Though I am a science student, but I have been studying arts, मतलब as a hobby, that I like to learn arts also. तो फिर वहां से I have developed the capabilities to observe. So if you want to study philosophy, you will have to develop the observation skills. So you'll have to think over the subjects. जब तक आप सोचिएगा नहीं चीजों पर, तब तक you will not be able to understand. एंड उसके भी ऊपर ये बात है कि यू हैव टू सी थिंग्स इन एंड अराउंड वट एवर यू हैव स्टडीड इन फिलोसफी, यू विल हैव टू फाइंड इट दैट वेयर इज इट अकरिंग इन द नेचर, नेचर में वो कहाँ हो रहा है, या सोसाइटी में वो चीज कहाँ होते हुए दिख रही है, then only it will be crystal clear for you. So my approach of teaching jurisprudence is that, say for example, there is a topic in jurisprudence, Austinian theory, है ना? तो ऑस्ट्रेलियन थ्योरी को आप आज के समाज में कहाँ देख सकते हैं? यू हैव टू फाइंड दैट थिंग। until and unless you will not be able to find that thing, बुक्स में थ्योरी पढ़कर इज कंप्लीटली, मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है टू अंडरस्टैंड। सो आई विल गिव यू एग्जांपल्स कि वो चीज कहाँ आपको मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है, और उसके साथ में इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन। Say for example, I tell you that this was the theory of Austin. Now, what do you make out of this? आपके हिसाब से ऑस्टिन कहना क्या चाह रहे हैं? तो वट एवर नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड टिल नाउ, अभी तक की आपने जितनी भी पढ़ाई की है, उसमें आपने जो भी नॉलेज एक्वायर किया है, उस नॉलेज का यूज करके इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन व्हाट ऑस्टिन इज ट्राइंग टू से, then definitely there is something which you know about it. And if you are not able to explain even a small inch of it, तो इसका मतलब है कि you will have to learn it right from the scratch. तो वहां पर फिर जो है वो मैं फिर हेल्प करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करूं कि अभी तक जितने भी चीज आपने पढ़ी है, उन चीजों में से ही आई विल ट्राई टू ब्रिंग अप दिस फिलॉसफी, बिकॉज यू सी ह्यूमन ब्रेन इज ट्रेन्ड इन अ वे दैट जो वो जानता है, वो जो भी देखता है, वो उससे पहले कंपेयर करता है कि इस तरीके की चीज मैं पहले से जानता हूं कि नहीं जानता हूं, अगर जानता हूं तो किस तरीके से जानता हूं, एंड इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रडिक्शन देन यू आइदर retaliate it or you accept it. So acceptance occurs only when you already don't know anything, because you cannot accept things as it is. लॉ के फील्ड में जैसा चीज है वैसा का वैसा एक्सेप्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यू ऑलवेज विल हैव योर ओन व्यू ऑफ थॉट, आपका एक अपना व्यू होगा ही होगा। तो जो आपका अपना व्यू है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल व्यू एंड हाउ इट इज बेटर देन द ओरिजिनल व्यू, you have to think over it. And if you are able to think over it, then only you will be able to explain that what flaws are there in this theory and what merits are there in this theory. Are you able to understand what I'm saying? Yes, sir. Yes. So that is the point. That is the whole thing about jurisprudence, because that is the most difficult subject which students find. But for me, it was quite easy because I have been studying philosophy from quite a long time. It's not that I have been studying as a subject, but hobby के तौर पर I study philosophy a lot. I study theoretical subjects a lot, such as criminology, philosophy, and your political theories. All these I keep studying because I have been preparing for UPSC from 3-4 years. So
I am already into it. Yes, Prashant. Yes, Prashant, you want to say something? You have raised a hand. Okay. So, any more questions you have in your mind? Then you can please shoot. Sir, I'm saying you will teach a whole syllabus, sir. All five Yes, the subjects. entire syllabus, all subjects, depending upon what you want to learn. See, I can teach you everything, but the point is that if you are able to learn that subject from the classes itself, then there is no need for me to teach. But if you are not able to understand that subject in the class, then there is that you will need me. बिकॉज आप फीस जो है वो कॉलेज को क्यों पे कर रहे हैं जब आप कॉलेज से कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं देन व्हाई आर यू पेइंग द फीस Okay, sir. है ना तो जो आप क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं मैं वो पढ़ाऊंगा बट अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है क्लास तो फिर आप वहां से कर लीजिए आई हैव नो इश्यूज Okay, sir. यस एनी मोर क्वेश्चंस सर सिलेबस कब तक पूरा करवा दोगे आप एग्जाम से कितने टाइम पहले तक? एग्जाम से कितने टाइम पहले इट डिपेंड्स अपॉन यू मोर मेरे से ज्यादा ये आप पर डिपेंड करता है दैट इफ यू आर एबल टू कीप द पेस विथ मी अगर आप मैं जैसे आज कुछ पढ़ाया तो कल ये ना हो कि मुझे फिर से पुरानी चीजें आपको दोहरानी पड़ जाए अगर वहां से दोहराना पड़ जाएगा तो फिर मुझे लेट हो जाएगा तो वट एवर आई टीच टूडे इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू रीड इट तब जाकर मैं जो नेक्स्ट डे बताऊंगा यू विल बी एबल टू रिलेट इट और इनफैक्ट ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने आज कुछ पढ़ाया है तो कल मैं उस चीज से आपसे पूछ नहीं सकता हूँ आई कैन आस्क इट तो जो भी आप कल पढ़ेंगे उसको आज में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करिए तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मोर ऑन यू लेस ऑन मी मेरे Hello, लिए sir. क्या है आई स्टडीड द एंटायर सिलेबस एंड आई कैन टीच यू द एंटायर सिलेबस इन 1 मंथ पांचों सब्जेक्ट एक महीने में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा बट देन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप उस चीज को घर में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं मैं पढ़ा दिया आप घर पर उस चीज को नहीं पढ़े तो फिर आपको समझ नहीं आएगा नेक्स्ट डे का जो मैं बताऊंगा हाँ जी दानिश Sir, this side me, Danish. यस Sir, प्लीज I want to know how to make legal notes. Sir, actually, it's really new, as you said. I have attended all the classes, but still unable to get to know how to go ahead with it. Sir, तो यू actually, वांट what to leave. That's the टू question, sir. The best what should be the best approach, sir. Yes, sir, definitely. That is the best approach in law because there are so many laws that are flowing in the background. So you have to learn what to leave. That is basically the entire thing all about. चाहे आप Yes, sir. कंपटीशन की तैयारी करें चाहे आप प्रैक्टिस करना चाहें यू हैव टू नो व्हाट टू लीव तो अभी के लिए यू फर्स्ट हैव टू ग्रैब द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट दिस सब्जेक्ट तो आपका जो सिलेबस बनाया गया है वो सिर्फ बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर है आपका सिलेबस है उसमें आपको इन डेप्थ जाकर कुछ नहीं है तो बेसिक बेसिक चीजें ही उसमें आपको बताई गई हैं तो जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन जो उसके हायर लेवल के या डेप्थ में जाकर जो कॉन्सेप्ट है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यू हैव टू पिक वन टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस and you have to read the contents of that syllabus contents जैसे आपने पढ़ा say for example just tell me one topic which you have been reading in the class Sir, will you teach us Bayer Acts? Bayer Act is the only thing that I teach better if you will see my YouTube video Bayer Act का एक एक वर्ड जो है ना वो क्यों लिखा गया है वहां पर अगर उसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा मीनिंग फुल स्टॉप क्यों लगा है कॉमा क्यों लगा है ये सब मैं बताता हूँ पूरा डिटेल में because Bayer Okay. Act को ही तो जजेस इंटरप्रेट करते हैं ना so if you know the language of Bayer Act then you yourself will be in a position to understand it better than the judges sometimes Okay, sir. Okay, sir. When will they start the syllabus, sir? When as will soon the as you classes join the begin? classes if you join today tomorrow will start I have everything prepared मुझे कुछ अलग से पढ़ने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ इतने दिन से तो I have everything prepared if you say that you are ready today tomorrow we start but the point Okay, is sir. that you should Sorry to interrupt you, sir. yes Sir, one more thing, sir. Sir, can you please share the YouTube link, sir?
of your Yes, videos? definitely. I have mentioned my YouTube channel in the chat box. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Let me write it again. So that's my YouTube channel. You can go and have a look. Legal Power of Zero. Yes, any more questions you have to shoot? Okay, and besides this, I have a habit of knowing each and everyone in the class. So online mode में भी I have developed this interest कि हर एक स्टूडेंट को मैं पर्सनली जानूं, ताकि वो क्या सोचता है किसी चीज के बारे में आई कम टू नो, because only then I will be able to explain and clear all his doubts, because unless and until I know what you are thinking about a subject, I will not be able to explain it in your way. Every student has got their own special ability to understand. तो जब तक मैं आपको जानूंगा नहीं, आप मुझे जानते हैं, बट आई इफ आई डोंट नो यू, आई विल नॉट बी able to explain you in the manner you understand. So that is why I have to know each and every one of you, whoever will opt for the classes. Not only that, अगर कोई और भी है जो कि क्लासेस नहीं लेना चाहता है, but still they want to be in touch with me, so I have to know each one of you personally. सर ऑनलाइन क्लास में दिक्कत यही हो रहा है ना कि हम इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे टीचर से। तो हमें क्या है ना, समझने में दिक्कत हो रही है, और कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में आ रहा है तो वो क्या है, वो आगे मूव कर रहे हैं, बट जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो तो फेस कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से जो है मैंने क्लासेस लेना शुरू किया था लास्ट टाइम. The जी same issue सर। was there with the previous सर batch also. सर और क्या है ना, बेयर एक्ट है ना, बेयर एक्ट तो पता है कि बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना, आंसर कैसे लिखना है ना, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। फिर किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इस सब में दिक्कत हो रहा है बहुत। फिर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, प्रॉब्लम यही हो रही है। I get it. I get it. So the cost will be 800 rupees per subject. That is the same cost which I used to take in the last batch also. And I think that that's a very nominal value that I have kept. Because I'll be ready for you 24/7. ऐसा नहीं है कि मैं आपको जब क्लासेस लेता हूँ तभी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं. Even after the classes, you can ask the doubts. And if I'm not available, then you can just post a message, and when I'm free, I'll call you. So I will call you. It's not that you have to call me every time. When I have the time, then I will call you to explain you the doubt. Yes, anything else? No, sir. Okay, so I guess that this webinar is now over. So thank you everyone for joining. Sir, Yes, please. hello. Sir, can we join for one or two subject like IPC or your jurisprudence? Yes, certainly you can do that. I will not be able to teach you the entire 5 subjects at once. So I'll take up with one subject, finish it in 20 days, 30 days, and then I'll take up with another subject. Okay, sir. Thank you. Yes. तो सर सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? आपको दिक्कत किसमें आ रही है? सर जूरिस्प्रूडेंस. Sir, See, sir, हाँ jurisprudence and हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आई एम नॉट हेयर टू बी योर टीचर. आई एम हेयर टू जस्ट गाइड यू इन द सब्जेक्ट्स विच यू आर फेसिंग डिफिकल्टी. जहां भी आपको क्लासेस में डिफिकल्टी हो रही है, मैं उसको पहले पिच करूंगा ना. तो आपको जूरिस्प्रूडेंस में इशू हो रही है, तो आई स्टार्ट विद दैट. इफ मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग इशू इन जूरिस्प्रूडेंस, देन डेफिनेटली व्हाई विल आई ऑप्ट फॉर द अदर सब्जेक्ट्स. पहले तो मैं उसको क्लियर करूंगा, बिकॉज इफ यू हैव कमांड ओवर वन सब्जेक्ट, देन आई थिंक दैट यू विल हैव डेवलप्ड योर कॉन्फिडेंस. सर जूरिस्प्रूडेंस 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा सर? Jurisprudence, last time I completed it in 25 days. मतलब 25 hours. हाँ जी, बोलिए. Shashi, you have to say something. Yes, sir. Sir, there is my query about books. What to read? Which book I have to read? That's For my what subject? question. For what subject? Like jurisprudence or IPC or
Hindu law and Hindu law or family law, because in Hindu there is a हिंदू लॉ में एक अलग पारस दीवान की ऐसा देख रहे यूट्यूब पे और कई लोग सजेस्ट कर रहे हैं, और फैमिली लॉ को ये एक मतलब कोई प्रधान करके कोई है टीचर एक प्रोफेसर, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर। ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी है, 2-3 बुक है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कौन से बुक को प्रेफर करें, कौन से बुक, क्योंकि हम लोग पर्सनली मैं अपना अगर बताऊं तो हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, तो पता नहीं कि कौन से बुक का इंग्लिश ये किस तरीके का है ना, समझने में कितना इशू आएगा, तो ये दिक्कत है। ठीक है। What was your subject in graduation? पॉलिटिकल साइंस। So have you studied it quite well? I mean, you have good knowledge about political theories. यस सर। Okay. So then I would suggest you that you go for KD Gaur. अगर आपको IPC पढ़ना है तो आप KD Gaur से पढ़िए, क्योंकि उसमें हर चीज को कैटेगराइज करके एक अलग से पैराग्राफ बनाकर दिया गया है। इवन द केस लॉ जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है उनका भी एक अलग कैटेगरी बनाकर फिर उनको एक्सप्लेन किया गया है। Then if you take from me for family law, you should go for Poonam Pradhan Saxena सर because पीएससी, सॉरी टू इंटरप्ट यू PSA सर। Pillai, सर पीएससी, यस सर, ये कैसी PSA बुक है? Pillai is another book of IPC, but the point is that that book is very lucid. Lucid in the sense कि आपको नोट्स अगर बनाने के लिए पढ़ना है तो you should read KD Kaur. लेकिन जो PSA Pillai है जो पीएसए पिल्लई है उसके अंदर में ना लंबे लंबे पैराग्राफ बस दिए गए हैं, एक तरीके से वो नॉवेल की तरह है आपका। तो वहां पर फिर आपको खुद ही छाट कर अलग करना पड़ेगा जो भी आप पढ़ेंगे नोट्स बनाने के लिए। बट केडी गौर में ना हर चीज की कैटेगरी बनाकर दी गई है, तो आप जाकर एक बार मार्केट में देख लीजिए केडी गौर में जो भी दिया गया है तो उसमें इस तरीके से दिया गया है। वट एवर आई एम टेलिंग यू, मैंने देखा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वैसे दिया गया है। बट पीएसए पिल्लई का जो पुराने एडिशन आते हैं, इशू ये है कि अभी मैं पर्सनली मार्केट जा नहीं सकता जहाँ पे ये बुक मिलते हैं, तो मुझे किसी से मंगवाना पड़ेगा, तो ये डिस्क्रिप्शन तो उसे मुझे ही देना पड़ेगा ना कि क्या कैसे मतलब कौन सी बुक चाहिए मुझे। हाँ ये हाँ, तो फिर प्रॉब्लम आप है ये। केडी गौर से पढ़िए, आप केडी गौर से पढ़िए, वो ज्यादा बेटर बुक है। ओके सर। और फैमिली लॉ के लिए सर पूनम प्रधान सक्सेना सिंपल लैंग्वेज है, और उसमें भी आपका हर चीज का हेडिंग बनाकर दिया गया है। तो वट एवर टॉपिक्स यू विल फाइंड इन योर सिलेबस, वो सब टॉपिक्स आपको टॉपिक वाइज पूनम प्रधान सक्सेना में मिल जाएगा। सर और देखो उसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों के लिए है वो? हाँ, दोनों के लिए। और और उसके सर बाद जूरिस्प्रूडेंस के लिए? जूरिस्प्रूडेंस आप किसी बुक से मत पढ़िए, आप दुक्की ले आइए। दुक्की आती है सिंघल की, तो सिंघल की दुक्की से आप पढ़िए। बुक से पढ़िएगा तो फिर आप जो है ऐसे से ऐसे घूम जाइएगा, इसीलिए दुक्की से पढ़िए। उसमें 2 बुक मेंशन किया हुआ था, परांज पे और बीडी महाजन की। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना कि दोनों ही बुक को आप पढ़िएगा तो फिर आप सुबह से शाम हो जाएगा और आप सोचिएगा कि इस बुक को पढ़ के मैं सीखा क्या, ऐसा फील आएगा। क्योंकि फिलॉसफी वैसे भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, और जो आप नहीं जानते हैं उसके बारे में कुछ तो आपको और डिफिकल्ट लगेगा। इसीलिए आप दुक्की से पढ़िए, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस आप यदि इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है आपका, जैसे दुक्की आप पढ़ रहे हैं, फिर दुक्की पढ़ते पढ़ते अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उसके बाद आपको जो बुक पढ़ना है पढ़िए। बट अनलेस एंड अनटिल आपका इंटरेस्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल बिट ऑफ इट। तो बेस्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए आप जूरिस्प्रूडेंस को फिलहाल पढ़िए। सर तो ये दुक्की या डीयू की जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल है क्या, मतलब? हाँ हाँ हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल है। सिंघल की आती है एक, और एक आपकी जैन की आती है। तो मैं सिंघल की प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि सिंघल में सब कुछ डिटेल में दिया गया है। जैन में आपको बहुत ही छोटा छोटा कम कम ब्रीफली हर कुछ दिया गया है। तो जब आप किसी चीज को डिटेल में देखते हैं तब जाकर आप उस चीज पर ज्यादा आपके पास मटेरियल होता है सोचने के लिए और आंसर लिखने के लिए। इसीलिए सिंघल में प्रेफर करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है।
यस सजेंद्र। सर ये बताइए कि जो डीयू का केस मटेरियल है आप पढ़ाओगे तो वो ऐसे स्टोरी बताओगे या उसको लाइन बाय लाइन पढ़ाओगे? लाइन बाय लाइन पढ़ाने से फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट जो भी उसमें फैक्ट है तो उस फैक्ट में कोर्ट ने क्या रेशियो दिया, यानी क्या रीजनिंग दी अपने जजमेंट को देने के लिए, वो बताऊंगा, और क्या डिसीजन दिया उस केस में जो कि बाइंडिंग होगा वो बताऊंगा। ये दो चीज जो है किसी भी जजमेंट से आपको लेना होता है। फैक्ट्स तो आपका रहता ही है, उसके अलावा रीजनिंग जो दे रहा है कोर्ट, और उसके अलावा कोर्ट का डिसीजन विच इज बाइंडिंग। ओके, और उसमें आंसर राइटिंग में कौन सा क्या इंपॉर्टेंट यूज करना है मटेरियल से? हाँ हाँ, मटेरियल से कौन सा स्टेटमेंट जो कि जज ने कहा है उसको आप अपने आंसर में लिखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में एग्जाम होगा आपका, तो ऑनलाइन मोड में यू कैन डायरेक्टली राइट फ्रॉम द केस मटेरियल ऑल्सो। ऑफलाइन जैसा तो है नहीं कि आपको याद करना है उसके बाद लिखना है, तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। बट ऑनलाइन में आप जैसा का वैसा जो है, जो जज ने कहा है एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट यू कैन कोट इन योर आंसर। क्योंकि केस मटेरियल में जैसे 5-6 पेज का दिया हुआ है, उसमें से कौन कौन सा पोर्शन जो है आंसर राइटिंग के लिए सही रहेगा वो सब। एग्जैक्टली। तो आंसर और राइटिंग क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगा मैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आया है ना आपका प्रीवियस ईयर में, वो भी डिस्कस हाँ, करेंगे जब। तो फिर मैं बताऊंगा कि आपने अभी तक जो पढ़ लिया है उसको अब आप इस आंसर में लिखिएगा कैसे, वही बताऊंगा। मतलब फुल एक ओके सब्जेक्ट में जो भी चीजें बताने के लायक है जिससे कि आप अच्छा मार्क्स ले आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड यू बिकम बेटर इन दैट सब्जेक्ट, कि आपको वो सब्जेक्ट खुद से पढ़ने पर भी समझ आ जाए। ये तीन चीज मेरा मोटिव रहता है। और सर बेयर एक्ट, आईपीसी का बेयर एक्ट भी करवाओगे सर? बेयर एक्ट तो पहले करवाऊंगा, मतलब बेयर एक्ट कराए बिना तो मैं केस मटेरियल खोलता ही नहीं हूँ। बेयर एक्ट तो पहले अच्छा करवाता हूँ, ठीक क्योंकि है मैं सर, भी वैसे ही ओके सीखा हूँ, मुझे भी टीचर्स ने वैसे ही सिखाया है, तो बेयर एक्ट तो मैं पहले बताता हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी, यस, एनी मोर क्वेश्चंस? Okay then, we call it a day. Thank you everyone for attending this webinar, and I look forward that you will join the classes as soon as possible. Thank you everyone. Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir.